Now, we were there doing exercise 7.2, and our seventh question was there. We did finish our exercise doing 6 questions, and now we are going to do seventh question. ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 90 degrees and AB is equal to AC. And you have to find angle B and angle C. So first of all, we will make a right angle triangle. Just zoom. एक second, beta. Okay. So this is the question. So now it is a right angle triangle और हमें जब angle right किस पे दिया हुआ है angle A पे. So that means this will be your angle A. अब आप इसको B मान लो, इसको मान लो, it doesn't matter. But they are saying AB is equal to AC, right? ये दोनों equal है. अब they have asked us to find angle B and angle C, right? हमें ये चीजें बोला है कि आप बताओ कि ये दो एंगल्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा. सो इसमें वी विल यूज द सम एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, सम एंगल प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे. यस, नाउ इट्स बेटर. आई थिंक एवरीवन शुड स्विच ऑन द कैमरा सो दैट आई कैन विजुअलाइज यू गाइज. इट्स सच अ लॉन्ग टाइम आई हैवंट सीन यू गाइज, राइट? So I really miss my class. So I don't know about you guys. आप लोग तो पढ़ाई से बचते हो, but हाँ, मैम are missing the classes actually. चलो, so we will use the sum angle property. So according to sum angle property, angle A, yes, plus angle B plus angle C is equal to, yes, it will be equal to 180, right? Because of sum angle property. So अब देखो बेटा, एंगल ए वी आर गिवन 90 डिग्री. सो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल जाएगा कि एंगल बी प्लस एंगल सी दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. अब एज यू कैन सी, ये जो आपका ए बी और ए सी इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, एंड द रीजन विल बी कि equal sides they subtend equal angles. Now we will put the value of angles. So it is 2x is equal to 90 degree. So therefore x is equal to 45 degrees. तो हमारा 45 डिग्री. so angle B जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें सारे एंगल्स का जो वैल्यू होता है दिस इज आवर इक्विलेटरल. अब एज यू नो दैट इज इक्वल टू सी इक्वल हो गया, इक्वल टू B, right? A B equal to AC. बोला C है ना, A B equal to AC क्या मतलब है? AC और A B equal to angle B equal to इसका मतलब ये एंगल वही, right? और हमारा so plus angle B equal to x equal to 1 over 8. So now we are going to start with exercise 7.3. As we had already done 7.2, now we will proceed on to exercise 7.3. Very first question of this exercise says, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC. ठीक है, same base BC पे ये दो isosceles triangles हैं, and vertices A and D are on the same side of BC. Okay. If AD is extended to intersect BC at point P, you have to show that angle ABD is congruent to ACD. Okay, clear? So now second part में हमसे पूछा है triangle ABP, okay, is congruent to ACP, and AP bisects angle A as well as angle D, and AP is the perpendicular bisector of BC. हमें ये सारी चीजों को हमें क्या करना है? We have to prove this thing. तो सबसे पहले we will start with our first part, right? Triangle ABD and triangle ACD. So first part solve करने के लिए we have in triangles ABD and ACD. Okay. सबसे पहली चीज क्या गिवन है बेटा हमें? AB is equal to AC. ये हमें गिवन था ना बेटा, क्योंकि क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सो
sides of isosceles, ठीक है, ओके, ठीक है, ओहो, isosceles triangle, ठीक बेटा। नेक्स्ट इज AD इज इक्वल टू AD, पार्ट में इसका क्या रीजन लिखूं बेटा? मैम कॉमन। कॉमन। आशी अब आप बताओ, BD इज इक्वल टू DC, इट इज गिवन, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, ठीक है, ये हमें गिवन है बात। यस। सो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD, yes, by SSS congruency criteria, yes, clear, ठीक है ना बेटा? चलें अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के लिए ना बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आपको ये उठाना, हमने उठाने हैं ABP, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू हमें ट्रायंगल लेना है ACP, राइट? नाउ we are going to take the side AB, add AB, yes, no, this can't be done, AP is equal to AP and BAP is equal to, okay, ठीक है बेटा, हमने ये जो अभी प्रूफ किया है ना, इससे हम ये कंक्लूड कर लेते हैं, ABD हमने कर लिया, हम ये मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया, ठीक है, CP से, ठीक। अभी हम रीजन में लिख लेंगे। तो सेकेंड पार्ट के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, वी हैव टू टेक इन ट्रायंगल्स ABP एंड ACP, राइट, ACP, ओके। सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, राइट। नाउ एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC, ठीक है बेटा, ये हो गया CP के थ्रू, ठीक है, ये हुआ CP के थ्रू, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं CP। नेक्स्ट इज बेटा AP इज इक्वल टू AP, क्यों? कॉमन, राइट। नाउ सो ये जो आपके दो ट्राइंगल्स हैं बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। नेक्स्ट पार्ट बताना है कि ए और एंगल डी को ना बाइसेक्ट करा। अब ये तो हमने कर लिया, CP से हो गया हमारा, ओके, लेकिन अभी डी का नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू सबट्रैक्ट I1 फ्रॉम I2, ठीक है। तो क्या होगा, ये ट्राइंगल ABP माइनस ट्राइंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल P। तो आपके पास ये बचा, so ट्राइंगल D कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PC, ओके। सो ये आपका है वो एंगल को एंगल अब AP इज हैव टू शो BC, ठीक है, हमने ये शो करना है। देखो बेटा, एक सेकंड रुकना, ये पेज को थोड़ा सा कर लो, ओके।
ठीक है बेटा। अब बेटा फोर्थ पार्ट के लिए हमें ये मालूम है, जो हमने सबसे पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया उससे हम क्या कर लेंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी, एंगल ए पी सी एंड दैट इज सी। ये एंगल्स क्या बनाते हैं, सो ए पी बी प्लस एंगल ए पी, जैसे therefore angle APB will be equal to 90 degrees। वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब मुझे who will explain the question? क्वेश्चन क्या है? Now AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. You have to show that AD bisects BC and AD bisects angle A. Okay. Now first of all ये altitude given है, so that means ये दोनों आपके क्या बन गए, 90 डिग्री के एंगल्स बन गए, राइट? दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल्स बन गए। ओके ठीक बेटा। सो इन ट्राइंगल्स ADB and ADC, first of all angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree, right? Then hypotenuse equal है, AB is equal to AC, ये हमें given है, right? एंड AD जो है इज इक्वल टू AD, ये कॉमन आ गया। सो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ओके, बाय RHS। ठीक है। सो BB DC CPCB is equal to angle D, same CPCB। Yes, next question again. Now our third question is, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PM of sorry PN, मैंने यहाँ पे M लिख दिया गलती से, it is PN, okay, PN। They are equal. You have to show that APM is congruent to PQN. Sorry बेटा, क्या कह रहे हो? Yes. Yes, who was there? Yes बेटा। अरे चलो, नाउ बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से फर्स्ट केस के लिए तो हमारे पास एवरीथिंग इज रेडी। इन फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल्स what we have to take the triangles which are ABM and PQN, okay? First of all it is given AB is equal to PQ, right? राइट बेटा, ये गिवन चीज है, ओके, सो वी विल राइट गिवन। नेक्स्ट AM इज इक्वल टू PN, ये भी गिवन है बेटा। नेक्स्ट इज BM इज इक्वल टू QN, ये भी हमें गिवन है बेटा जी। सो ये दो ट्राइंगल्स कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा?
Therefore triangle A, हाँ जी क्या हुआ है बेटा? SSS. SSS, yes, बिल्कुल ठीक है. So congruent triangle PQN by SSS congruency that is equal to angle. Okay, yes, is that clear? Okay, so बेटा देखो ठीक है सेकंड पार्ट सीसीटी अच्छे से नहीं की थी. नाउ नेक्स्ट पार्ट अभी क्यू और बता दिया लड़कों की है ये दोनों है और ये एम है ये एमसी और क्यूएन जो है वो अगर बीएन क्यूएन बीसी और क्यूआर की राइट. तो सेकंड पार्ट के लिए ए सी एंड बी आर ए बी गिवन है देन हमें एंगल बी इज ये लिया है ठीक है जी. देन जो आप साइड है पहले बीसी इक्वल टू तो ये दोनों ट्रायंगल हुए पार्ट कौन है Side and side. तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा. हाँ जी बेटा अंशु मैं समझा देती हूँ. देखो बेटा हमें ना दो ट्राइंगल्स गिवन है बेटा ए बी सी और पी क्यू आर. ठीक बेटा हमें ये गिवन है दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. ओके ए एम इज इक्वल टू पी एन एंड बी एम इज इक्वल टू क्यू एन. ये हमें गिवन है चीज. ओके अब हमें प्रूफ क्या करना था ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन. तो हमने ये तीनों दो ट्राइंगल्स लिए इसमें दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल है. सो दैट मीन्स एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमने एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल कर दिया. ठीक अब आप ये देखो बेटा हमारे पास गिवन है बी बी एम इज इक्वल टू क्यू एन. ठीक है अब ट्वाइस ऑफ बी एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू एन. ट्वाइस ऑफ बी एम क्या है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. तो ये बन गया साइड एंगल साइड. यस इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर बेटा. Yes, ma'am. Good. Okay, just yes. Now, question number 4 is BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Okay, using RHS congruence rule, you have to prove that triangle ABC is isosceles. अब triangle ABC is isosceles इसका मतलब हमें AB और AC को equal prove करना, right? अब RHS rule कहाँ लगेगा जहाँ जिस triangle में आपका 90 डिग्री का केस है. Okay, so 90 डिग्री का कहाँ पे है? So we will take in triangles BEC and BFC. ओके अब देखो बेटा हमें ये इक्वल ऑल्टीट्यूड्स गिवन है. सो पहले तो राइट एंगल लिख लेते हैं. एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, राइट. देन हाइपोटेन्यूज इक्वल है हमारे, राइट. BE चलिए बेटा सो BE इज इक्वल टू FC. दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे वी विल राइट द रीजंस. these are given to be 90 degrees, right? और ये हमें इक्वल गिवन है. ठीक है और साइड हम यहाँ पे BC ले लेंगे. सो इट इज दिस BC इज द कॉमन. सॉरी ये BE और FC इज नॉट द हाइपोटेन्यूज. दिस इज द साइड. ओके हाइपोटेन्यूज इज योर BC. ओके so BC is equal to BC. This one is your hypotenuse. So this is given to us, or you can say given as well as common, right? ये दोनों triangles में common आ रहा है. So ये दोनों triangles जो हैं बेटा they got congruent, right? Triangle BEC is congruent to triangle BFC by RHS congruency. ठीक है इसका ये मतलब that means AB is equal to AC. So the triangle can be called as isosceles triangle. So angle AB, sorry, triangle is isosceles. Yes. Question number 5 is ABC is an isosceles triangle with
AB is equal to AC and draw a perpendicular from A towards BC pointed at mark P, and you have to show that angle B is equal to angle C. So now as you can see we have drawn that perpendicular. So जब आपने perpendicular draw किया आपको दो triangles मिल रहे हैं, right? You are getting two triangles. In triangles APB and APC. Okay. First of all, angle APB is equal to angle APC. ठीक है, ये किसके बराबर है बेटा? 90 डिग्री के, right? Okay. Then AB is equal to given AP is equal to तो क्या है? ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड. ठीक है, angle C. That is no side of congruency now is very effective as 10 equal angles. But no the congruency just draw that equation there. This is our exercise 7.